gearing up for the start of the hybrid school in grade 9 to 12th, and a lot of us are engaged in the planning and looking forward to come to school. I hope 15th August will be a lovely day in which सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे after a long time, and it should be a nice celebration. We've seen in Maharashtra how the government did a U-turn of starting the school and not starting the school now. So there's a lot happening, and yes, I think so. We've been on a really we've been on a tidal sort of a journey with the ups and downs, and we've now into about more than 1.5 years of online learning. We've seen how that has progressed, how that has changed us as teachers. आप एक डेढ़ साल पहले सोचेंगे कि आप क्या कर रहे थे और अब सोचेंगे तो you would see that it's a complete topple, मतलब complete shift. And similarly, not just teachers, I think if we view the school holistically also, we've come a long way from what we were doing just before the pandemic hit and what we are doing now. We are moving towards a lot of catering to the lifelong learnings of the child. We are really looking to cater to each and every child now in our classrooms. So we've seen a very big gradual shift over these last 1.5 years, and I would really like to congratulate everyone who has been able to make those shifts within in small little way or big ways within their classroom, because हर एक पर्सन का जो छोटा बड़ा शिफ्ट होता है अपने माइंडसेट में, और उसके प्रति जब हम बच्चों के माइंडसेट में वो शिफ्ट करा पाते हैं, तभी जाकर के स्कूल जो प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, तभी वो बड़ा शिफ्ट हम हर एक पर्सन का शिफ्ट इंक्लूड करके ही एक बड़ा शिफ्ट आ पाएगा, राइट? सो ऑल द शिफ्ट दैट हैज हैपेंड टुवर्ड्स द बेटर is all because everybody has put in the efforts in their classrooms, in every single conversation they've had, and that's why we've been able to move forward in such a new and nice direction, I believe. So before we start today's session, before I leave you with Mrs. Vaid, today's session we are going to talk about Panchatantra pedagogy, and a small group of teachers from DPS Lava Nagpur will lead that session, and I'm sure it's going to be a very interesting one. After that, in the second half of today, I'm going to talk about developmental discussions, and we will do a little bit of discussion on developmental discussions, right? But before we go on to Mrs. Vaidya and we start this session, I want to ask all of you a quick question. Many of you have gone through the classroom management trainings, right, of Rob Plevin. काफी सारे लोग मैंने देखा कि they have gone through some or the other module. मेरे हिसाब से तो सबने कर लिया है, but many people have gone through all the modules also, right? So just give me in between I will put up a poll, okay? And once this session, once the first one is over from DPS Lava Nagpur, I would want you to answer that poll of whether those classroom management trainings have helped you change your practice of classroom management or not within your classroom. Right? So over to you, Mrs. Vaidya, for the first part. Thank you, sir. Before we begin our session, I request Sheetal to invite the bell. And if we could all just close our eyes and breathe and listen to the bell. Sheetal ma'am.
Sheetal, are you facing problems? Can someone else present the screen? Can I invite? Yes, sir, please. Thank you. Thank you so much, sir. Sheetal, if you will present the screen, please. We can't hear you. मैम स्क्रीन दिख रही है? नहीं. अभी दिख रही है मैम? नहीं. ओके, फिर से करती हूँ. While Sheetal is trying to present the screen, let me set the ball rolling. Ramya Mantra Panchatantra. Good evening, everyone. At the very outset, I would like to state that our session today owes it all to Mukesh Shelat sir's team that presented an awesome CC Friday a few weeks ago on the same theme. Thank you, sir and sir's team. What caught our attention was the title, Panchatantra Pedagogy. मैम अभी दिख रही है? Nahi. If somebody else can present it from the team, अभी भी नहीं दिख रही है मैम? nahi. नीलम मैम, कैन यू प्रेजेंट? Okay. What caught our attention, as I said, was the title, Panchatantra Pedagogy. It planted a seed, a thought, a germ of an idea, and we brainstormed. Here we are to present the result of it all. The Panchatantra stories are a part of our childhood. Each story is engrossing and has a takeaway. And then, if there are 84 or 85, there are different opinions about this. If there are 84 or 85 such stories, wouldn't that become a pedagogy, a method, a practice of teaching, engaging, enriching, and empowering? So we dove a little deeper and we found that the Panchatantra stories are potent enough to equip our students with some of the 21st century skills that the NEP talks about. For today's session, we've picked just one story and 5 skills. I hope you all enjoy this session that our Hindi, Marathi, and Sanskrit educators bring to you. Over to you, Makran sir. नमः शारदायै नमः सभायै सभाजनेभ्यः च। वाणी की देवी सरस्वती को वंदन करते हुए आज के रम्य मंत्र पंचतंत्र नामक सीसी फ्राइडे में उपस्थित सिद्धार्थ सर, गौतम सर, श्रीमती अनुपमा महोदया, मुकेश सर, पुष्पी महोदया, राजश्री महोदया तथा उपस्थित सभी गणमान्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतवर्ष की समृद्ध ज्ञान परंपरा का मुख्य केंद्र बिंदु विद्या का अध्ययन तथा अध्यापन है। विद्या के बिना मनुष्य पशु कहलाता है। संस्कृत में भी यही सूक्ति बताई गई है कि विद्या विहीनः पशुः, विद्या के बिना मनुष्य पशु कहलाता है। अतः चाहे कुमार हो चाहे राजकुमार तथा प्रजा को शिक्षित करना यह प्राचीन काल में आश्रमवासी ऋषिजनों का मुख्य कार्य था। इसका उद्देश्य यही था कि भविष्य में सिंहासन पर बैठने वाला राजा हो तथा वो राजा के दरबार में जो
वर्तमान ऐसी प्रजा हो तथा उसका मंत्रिमंडल सभी लोग सुशिक्षित हो। अध्यापन शास्त्र में पंडित राज विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र नामक ग्रंथ का अमूल्य योगदान हमें दिया है, जो कि पूर्व परंपरा से अध्यापन शास्त्र से जुड़ी हुई यह बात है। यह ग्रंथ मित्रभेद, मित्रलाभ या मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक इन 5 तंत्रों में विभाजित हुआ है। इसीलिए इसे पंचतंत्र कहा जाता है। अभ्यासकों के मत के अनुसार कहाँ 84 है तो कहाँ 85 कहानियां ग्रंथ के संहिता में योगदान देती है। संपूर्ण कहानियां प्राणी तथा पक्षी आदि पात्रों से युक्त है और सुबोध तथा बोधगम्य जल्दी समझ में आने वाली है और छात्रों की लक्ष्य वेधन की क्रिया तथा कथा की रंजकता, माधुर्यता, प्रासादिक गुण और परिपूर्णता से युक्त ऐसी कथाएं पूरी प्रतीत होती है। वास्तव में बताना चाहूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 द्वारा बताए गए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए पंचतंत्र बहुत उपयोगी है। आज के शिक्षक सभा में हम ऐसी ही पंचतंत्र पर आधारित गतिविधियां देखने वाले हैं। श्रृंखला की अगली कड़ी की ओर चलते हुए मैं श्रीमती दीप्ति महोदया जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सभासदों को मेरी ओर से शुभ संध्या। इस चित्र को देखकर बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ क्या हो रहा है? आप अपने उत्तर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बच्चा पालने में सो रहा है, मम्मी कहीं बाहर जा रही है, नीला बच्चा की कहानी है। यस, बहुत बढ़िया। बच्चा आराम कर रहा है, माँ बाहर जा रही है, वुमन इज गोइंग आउट टू पिक सम फ्लावर्स। ओके, ठीक। मुंगूस भी है, बच्चा चैन की नींद सो रहा है, बच्चा पालने में सो रहा है। ओके, स्क्वेरिल इज लुकिंग एट द मदर गोइंग। ओके, तो इस चित्र को आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है यहाँ जो है वो गिलहरी है और गिलहरी बाहर की ओर देख रही है? जी, पंचतंत्र की कहानी है ये। चित्र को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि बिल्कुल नेवला है, नेवला और सांप की कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर। नेवला और सांप की कहानी है। और क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में आपको? और क्या क्या दिखाई दे रहा है? थिंकिंग अबाउट द बेबी। ओके, महिला अपने पुत्र को पालने में सोता छोड़कर बाहर जा रही है। जी, नेवले को बच्चे कब हवा लेकिन माँ जा रही है। ठीक, बच्चा अकेला है, नेवला पालतू है। आपको ऐसा क्यों लगता है ये नेवला पालतू है? ऐसा क्यों लगता है? कुछ तो कारण होगा जो हमें ऐसा लगा कि वो नेवला पालतू है। पहना हुआ मैम, उसके गले में कुछ पत्ते जैसा है। बहुत बहुत खूबसूरत उत्तर मैम। उसके गले में एक पट्टा है जिसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि वह नेवला पालतू है, क्योंकि हम अक्सर पालतू जानवरों के गले में ऐसा पट्टा डालते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने बहुत खूबसूरत उत्तर दिए। साथ ही चित्र को देखकर ये कौन सी कहानी है ये भी पहचान लिए। तो हम इस कहानी को अब देखते हैं कि हम इस पंचतंत्र की कहानी द्वारा विजुअल थिंकिंग स्किल को क्लास में कैसे पढ़ाए और बच्चे इसे कैसे समझते हैं। अगली स्लाइड सर। सबसे पहले विजुअल थिंकिंग स्किल क्या है? हम इसे दृश्य चिंतन कौशल के नाम से जानते हैं। और ये है क्या चीज? एनईपी ने बच्चों के कौशल विकास पर विशेष बल दिया है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम बच्चों में थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल और विजुअल लिटरेसी को कला का उपयोग करके दिखा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी यह बात प्रमाणित की है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो 3 दिन बाद हम उसको लगभग 10% तक ही याद रख पाते हैं, जबकि वही चित्रों के साथ हमने अगर पढ़ाया या दिखाया तो 3 दिन बाद हम उसे 65% तक के याद रख सकते हैं। दृश्य जो है हमारी स्मृति पर एक अलग ही छाप छोड़ते हैं।
ये स्किल क्यों जरूरी है, कक्षा में इसकी क्या आवश्यकता है। कहते हैं एक अच्छी तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है। छोटे बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। जब कहानियों को चित्र के द्वारा सुनाया जाए तो उसमें वे अधिक रुचि लेते हैं, उनके सेंस ऑर्गन एक्टिव होते हैं, इस तरह उनकी दिमागी कसरत होती है और वे कक्षा में एक्टिव लर्निंग करते हैं और इस तरह हम एक्टिव लर्निंग को कक्षा में बढ़ावा देते हैं। चित्र बच्चों को उत्तेजना से भर देते हैं। वे चित्र देखकर एक्साइटेड होते हैं और अपने भावों को प्रकट करते हैं। हमारी कक्षा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इस चित्र को कक्षा 3 और 4 में दिखाया गया तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। उन्हें इसी के आधार पर विजुअल थिंकिंग क्वेश्चन पूछे गए और बच्चों ने इस गतिविधि में भाग लिया। कक्षा के दौरान जो बच्चे वीडियो बंद रखते थे, जो माइक बंद रखते थे, उन्होंने इस गतिविधि में इतनी अच्छी तरीके से भाग लिया और कुछ उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत हैं। चित्र को देखकर जिस तरह हम बड़ों ने अपने भाव व्यक्त किए, हमें लगा कि वहां पर गिलहरी है, उसी तरह बच्चों ने भी देखा और उन्हें भी लगा, बच्चों ने अपने नजरिए से उत्तर दिया कि मैंने देखा कि एक लड़का सो रहा है और उसके माता पिता बातें कर रहे हैं। लोमड़ी दरवाजे के पास बैठी है। बच्चों ने इसे लोमड़ी भी कहा, कुछ बच्चों ने इसे गिलहरी कहा और उन्होंने कहानी का अंदाजा लगाते हुए लिखा कि एक दिन एक आदमी ने एक गिलहरी खरीदी। लड़की ने कहा यह गिलहरी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। लड़के ने कहा कुछ नहीं होगा, भरोसा करो। लड़की और आदमी दोनों बाहर से चले गए। गिलहरी घर में थी। एक सांप घर में आ गया। गिलहरी ने बच्चे को बचने के लिए अपने आप को मार दिया। तो बच्चों ने इस तरीके से कहानी प्रस्तुत की। कक्षा 3 के बच्चों ने चित्र देखा और उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि एक लड़की कह रही है कि मेरे साथ कुएं में पानी लेने आओ, और वह जो लड़का बैठा है वो कह रहा है नहीं। और एक मासूम बच्चा सो रहा है झूले में। फिर मैंने जब ये प्रश्न पूछा कक्षा में कि आपको ऐसा क्यों लगता है ये मुंगूस है, तो बच्चों ने उत्तर दिया कि ये एक मुंगूस के शेप में है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। और कक्षा 3 के बच्चों का ये भी जवाब था कि मैंने मेरे घर के पास मुंगूस देखा है, इसीलिए ये चित्र देखकर मुझे लगता है कि ये मुंगूस है। तो इस तरीके से जब हम दृश्य दिखाते हैं तो हम उनको, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, वे अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगली स्लाइड सर। कक्षा में विजुअल थिंकिंग कौशल के उपयोग के क्या लाभ हैं? छात्रों में एकाग्रता का विकास होता है। गतिविधि द्वारा क्लासरूम एंगेजमेंट होता है। दृश्य श्रवण कौशल का विकास होता है। तार्किक क्षमता का विकास होता है। कक्षा में नवीनता और रोचकता को बढ़ावा मिलता है। छात्रों की विचार अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। आइए अब इसी रचनात्मकता के साथ मैं यह आशा करती हूँ कि यह चित्र आपके स्मृति पटल पे छाप छोड़ेगा और लीलावती मैडम द्वारा कला के साथ हम इस कहानी को जोड़ के कक्षा में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इस वीडियो द्वारा हम देखेंगे। साथ ही रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मैं नीलम मैडम को आमंत्रित भी करना चाहती हूँ। नीलम मैम, वीडियो प्ले। नेवला और ब्राह्मण की पत्नी। बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसका लड़का एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें अपने खेत में एक नेवले का बच्चा मिला। उसकी बुरी हालत देखकर वे दोनों उस नेवले के बच्चे को अपने घर ले आए। अच्छे से पालन पोषण के कारण वह नेवले का बच्चा बड़ा हो गया और उनके घर में पालतू जानवर बनकर रहने लगा। बड़े दिनों के बाद उस ब्राह्मण के घर में एक शिशु ने जन्म लिया। नेवला हमेशा उस शिशु के पास जाकर सो जाता था और उसके आसपास खेला करता था।
परंतु ब्राह्मण की पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं नेवला उसके बच्चे को काट ना दे। एक दिन ब्राह्मण काम पर गया था और उसकी पत्नी बच्चे को पालने में छोड़कर पास के कुएं से पानी लेने गई। नेवला तब वहां बच्चे के पास सोया हुआ था। जब नेवला बच्चे की देखरेख कर रहा था, उसी समय घर में एक सांप आ गया। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी पानी का बर्तन लेकर घर लौटी, उसने सबसे पहले नेवले को देखा। नेवले के मुंह पर सांप का खून लगा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है और उसने तुरंत उसे लाठी से पीट पीट कर खत्म कर दिया। उसे मारने के बाद वह तुरंत अपने बच्चे के पास दौड़ते हुए भागी। जब वह अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि बच्चा हंसते हुए पानी में खेल रहा था और पास में एक सांप मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और नेवले की याद में वह रोने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी बड़ा काम करने से पहले हमें एक बार अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना किसी चीज को अपनी आंखों से देखे बिना भरोसा नहीं करना चाहिए। सर अगली स्लाइड। धन्यवाद दीप्ति मैडम, धन्यवाद लीलावती मैडम, आपने सुंदरता से कहानी के साथ आर्ट इंटीग्रेट किया। उपस्थित सभी आदरणीय गणमान्यों को मेरा सादर अभिवादन। उपरोक्त कहानी सांप और नेवला वास्तविक जीवन की कहानी है, जिसमें बिना सोचे कार्य करने के परिणाम की बात की गई है। इस कहानी के माध्यम से हम रचनात्मक कौशल पर आज बात करेंगे। किसी भी विषय में रचनात्मक कौशल हेतु वास्तविक जीवन की स्थितियों पर विचार कर अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति समझ विकसित की जाती है। इससे निर्णय लेने का कौशल विकसित होता है। यह विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है और सभी विद्यार्थियों को योगदान करने का अवसर मिलता है। क्रिएटिविटी किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबद्ध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, इन्वेंट करने या रिक्रिएट करने की प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी को बढ़ाने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। रचनात्मकता शिक्षण की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है।
क्रिएटिव स्ट्रेटेजी के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करता है। एक छोटी सी एक्टिविटी शब्दों का खेल के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। आप अपना उत्तर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो कहानी आपने देखी सांप और नेवला, सांप और नेवला इस शब्द से जुड़े और कौन से शब्द आपको याद आते हैं? जैसे मुझे पक्षी कहने से पेड़ याद आता है, तिनका, घोंसला, अंडे, हवा इत्यादि शब्द मैं उससे जोड़ सकती हूँ। सांप और नेवला शब्द सुनने पर आपको उनसे जुड़े कौन कौन से शब्द याद आते हैं? आप अपना उत्तर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। रेप्टाइल्स, हिज साउंड, जहरीला, एनिमी, लड़ाई, फॉरेस्ट, स्नेक चार्मर, लड़ाई, वीनम, फॉरेस्ट, बोथ आर वाइल्ड एनिमल्स, नागपंचमी, यस, नाग देवता, फैंक्स, फॉरेस्ट, सॉइल, एनिमल्स, ट्रीज, जंगल, यस, शत्रुता, कानन, दुश्मनी, कोबरा, हिज साउंड, पॉइजन, फाइट, जी हाँ, डेंजर, लॉयल्टी, सजग एवं चप्पल, सपेरा, मोर, शत्रुता, फूड चेन, जी हाँ, फाइट, टीचर, डिफेंडर, वाइल्ड एनिमल। तो बहुत से उत्तर यहाँ पर एक शब्द, केवल मैंने कहा यहाँ पे सांप और नेवला, आपने उनसे जुड़े हुए कितने सारे शब्द यहाँ पर हमें बता दिए। तो विद्यार्थी भी कक्षा में इस तरह से शब्दों की पहेली के द्वारा भी हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी ने उत्तर दिया। एनईपी के अनुसार छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने एवं लचीली तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करने पर बल दिया गया है। कहानियां भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का कलात्मक ढंग है। एक छात्र को रचनात्मक कल्पना न केवल आनंद देती है, बल्कि उसके द्वारा किया गया आविष्कारशील कार्य भी उसे भाता है। छात्र विषयानुकूल अपनी सामग्रियों में हेरफेर करना पसंद करता है और यह उसके स्वभाव की चंचलता और मौलिकता को दर्शाता है। कहानियों के माध्यम से छात्रों को कक्षा कक्ष से जोड़ना बहुत ही सरल होता है। रचनात्मक कौशल कक्षा के सभी छात्रों को सीखने में तथा पूरी तरह से भाग लेने के लिए अवसर और सहायता करते हैं। सीखने का समर्थन उन्हें हमसे प्राप्त होता है और छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी यह उपयुक्त और सुलभ है। प्रभावी ढंग से इसका उपयोग किया जा सकता है। आपकी दीर्घावधि की शिक्षण प्रक्रिया और विकास का प्रतिचित्रण भी रचनात्मक कार्यों द्वारा किया जा सकता है। रचनात्मकता से व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है, अर्थात व्यापक दृष्टिकोण का अर्थ होता है पूर्ण विचार अथवा एकीकृत विचार। संकुचित अर्थ में, छोटे शब्दों में यदि कहा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य है आत्म अभिव्यक्ति, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास तथा प्राकृतिक विकास। ये बात स्वीकार की गई है। रचनात्मक कौशल बालक को सीखने, उसकी व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं तथा विशेषताओं को बढ़ावा देते हैं और समाज एवं पर्यावरण के साथ उसे एडजस्ट और एडॉप्ट करने में भी मदद करते हैं। कहानी से सीखना प्रेरक और रुचिकर होता है और इसके द्वारा सिखाया हुआ पाठ बालक को जीवन भर याद रहता है। अमूर्त विचारों द्वारा वर्तमान समस्याओं को समझकर सुलझाना, अमूर्त विचारों द्वारा अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर जो बात है ये स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैं आप सभी को दूंगी कि जिस तरह किसी गद्य का संदर्भ अर्थ में योगदान देता है, उसके शब्दार्थ समस्या की व्याख्या करते हैं। समस्या का अंतिम लक्ष्य क्या है और कौन से नियम इसमें लागू किए जा सकते हैं, यह समझने की क्षमता समस्या को हल करने की कुंजी का प्रतिनिधित्व करती है। कभी कभी
समस्या के लिए अमूर्त सोच या रचनात्मक समाधान की आवश्यकता होती है। तात्पर्य, बालक इन्हीं कौशल का प्रयोग जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने में करते हैं। नवीनता एवं स्वच्छंदता होने से उत्साह, विषयांश के प्रति रुझान निर्मित होता है। कहानी सुनना हम सबको बहुत पसंद है और अभी तक पसंद है, इसलिए हम मूवीज देखते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, तो कहानी सभी को पसंद आती है। तो अगर हम किसी भी विषय को शुरुआत कहानी से कर दें तो उसके प्रति रुझान निर्मित किया जा सकता है और छात्रों को स्वतंत्रता मिलती है किसी भी गतिविधि को करने के लिए। छात्र स्वतंत्र और सार्थक गतिविधि करते हैं। सर, अगली स्लाइड प्लीज। शिक्षण के लिए सक्रियता, छात्र सीखने के लिए तत्पर तैयार होते हैं। भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति स्पष्टता भी देखी जाती है। सकारात्मकता, विषयांश के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक और सरल हो जाता है। स्व अधिगम को बढ़ावा मिलता है। छात्र खुद से अभ्यास कर सीखने का प्रयास करता है। उसके अनुभव और ज्ञान में वृद्धि भी होती है। छात्र ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं। कहानी या पाठ के किरदारों की पहचान, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति स्पष्टता भी देखी जाती है। सर, अगली स्लाइड। सॉरी सर, बैक। इस कहानी का मूल्यांकन छात्रों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति हेतु निम्न गतिविधियों द्वारा किया जा सकता है। हमने जो कहानी देखी उसका मूल्यांकन किया जा सकता है रचनात्मक गतिविधियों द्वारा, जैसे कविता निर्माण और सस्वर गायन, आपसी संवाद और नाटकीयता के रूप में, चित्र वर्णन, किसी कहानी के किसी एक दृश्य पर चित्र वर्णन हो सकता है, साक्षात्कार लिया जा सकता है। ऐसा हम किसी बच्चे से कह सकते हैं कि लापरवाही ऐसी हुई है या गलती ऐसी हुई है जिसमें हमने बिना सोचे समझे कार्य किया है, उस पर भी साक्षात्कार करवाया जा सकता है। सजीव निर्जीव वस्तुओं का वर्गीकरण करवाया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नारा लेखन, कहानी की सीख पर, कठपुतली का खेल, कहानी का अंत बदला जा सकता है। कहानी की शिक्षा से नई कथा तैयार की जा सकती है। भाषण, निबंध, आत्मकथा कहानी की कल्पना पर तैयार की जा सकती है। पत्र, समाचार लेखन, सूचना लेखन, माइंड मैप इत्यादि रचनात्मक गतिविधियां की जा सकती है। इस कहानी को अगर हम एक ही कहानी लें या और भी कोई विषयांश पढ़ाएं तो हम इन कथाओं का, इन रचनात्मक कार्यों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी पाठ या कहानी साहित्य के साथ हम व्याकरण के पाठ भी काल्पनिक कथा द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद सिखाना है तो हम यहाँ एक कहानी, काल्पनिक कहानी तैयार कर सकते हैं। जैसे रचना नाम की एक महिला थी, उसके 3 बेटे थे। पहले का नाम सरल, दूसरे का नाम संयुक्त और तीसरे का नाम मिश्रित था। उसके तीनों बच्चे एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से बोलते थे। इससे वह बहुत दुखी थी। एक दिन रचना ने तीनों से पूछा, पक्षी कब चहचहाते हैं? सरल बोला, प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। संयुक्त बोला, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। मिश्रित बोला, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को समझाते हुए हम कहानी की सहायता से व्याकरण को सरल बना सकते हैं। इन रोचक गतिविधियों द्वारा विषयांश को आकर्षक और छात्रों के सीखने के अनुकूल बनाया जा सकता है, जिसमें छात्र केंद्रित अध्ययन और लर्निंग बाय डूइंग का समावेश है। अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। यदि आप सांप और नेवला इस कहानी के राइटर होते तो इसे क्रिएट करते तो आप कौन से 2 जानवरों का चुनाव करते? अगर आप इस कहानी के राइटर होते तो ऐसे कौन से 2 जानवर हैं जिनका चुनाव आप करते? अपने उत्तर आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। हॉर्स एंड डॉग,
leopard and dog, चूहा बिल्ली, same animals, cat and dog, cat and rat, cat and dog, okay, mouse, तो mouse and lion, deer and tiger, okay. तो जी हाँ, अगर हम इस तरह से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर आप इसके राइटर होते तो कहानी में आप क्या बदलाव करना चाहते। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद उत्तर देने के लिए, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आप सभी ने। अब मैं मनीषा महोदया जी को गहन सोच इस कौशल पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नीलम मैम। आभासी मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को शुभ संध्या। जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि एनईपी के तहत गहन सोच अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग पर अधिक बल दिया गया है। क्या होती है गहन सोच और ये विद्यार्थी जीवन से ही उनमें विकसित करना क्यों आवश्यक है, ये हम सब बेहतर तरीके से जानते ही हैं। दरअसल गहन सोच अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग हमारे सोचने का ही एक तरीका है जिसमें हम एक तार्किक अर्थात लॉजिकल और स्वतंत्र सोच के साथ किसी समस्या का उपयुक्त हल निकालते हैं। सामने की स्थिति की हर बारीकी को समझते हुए मन की एकाग्रता के साथ किसी उचित हल तक पहुंचते हैं। अगली स्लाइड सर। पंचतंत्र की अधिकतर कहानियां विष्णु शर्मा जी ने प्राणियों पक्षियों को लेकर ही लिखी है, जिनमें प्रत्येक पात्र किसी न किसी गुण या स्वभाव का प्रतीक रूप होता है। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आज की हमारी कहानी जो है सांप और नेवला, इसमें लेखक ने जिन पात्रों का चुनाव किया है वह किस उद्देश्य से किया होगा, यह गहन सोच का ही एक प्रश्न है और इसका उत्तर मैं पैडलेट लिंक आपको शेयर कर रही हूँ, तो उसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी भाषा में इसको लिख सकते हैं। मैं आपके साथ लिंक साझा करती हूँ। जैसा कि नीलम महोदया ने भी अभी आपसे पूछा कि और कौन से प्राणी ले सकते थे, पर इन्होंने जो सांप और नेवला का ही चुनाव किया, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जरूर कोई कारण रहा होगा, इसीलिए उन्होंने इसका चुनाव किया। पैडलेट लिंक में आप लोग उत्तर डाल सकते हैं। दे आर एनिमीज, यस। भारती मैम ने कहा है कि वे शत्रु हैं आपसे, यस। फन एनिमीज, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर वही करीबन समान मुझे लग रहे हैं कि सब जानते ही है, मूलतः उनका स्वभाव सब जानते हैं, इसीलिए उत्तर जो आ रहे हैं कि वो दोनों जो है वो शत्रु हैं आपस में। जी जी बिल्कुल, दे आर एनिमीज, यस। बिल्कुल, दोनों जन्म से ही शत्रु हैं। जी, सांप और नेवला हमेशा से ही दुश्मन हैं, दोनों जन्म से ही शत्रु। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के उत्तर जो आ रहे हैं वो अपनी अपनी, जब हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है इसको या सुना है कहानियों में, जानते हैं हम बचपन से, हमें बताया जाता है कि सांप और नेवला जो है वो आपस में शत्रु होते हैं। तो मेरी भी यही सोच में बताना चाहूंगी कि जहाँ तक मैं भी सोचती हूँ कि कहानी में इन्होंने ये जो लिया है दोनों पात्र, वो यही उद्देश्य से लिए है कि सांप और नेवला जो है तो वो आपस में शत्रुत्व की भावना रखते हैं, और इसी कारण जो है सांप को देखते ही नेवला जो है वो आक्रामक हो गया और उसने सांप को
मार दिया और उस पर टूट पड़ा। तो ये कहानी से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो बिल्कुल सही होता है ये हमारा निर्णय कि सांप और नेवला आपसी शत्रुत्व की भावना उनमें होती है और शायद इसी वजह से लेखक ने यहाँ पर इन पात्रों का चुनाव किया होगा। तो आगे की स्लाइड पर चलते हैं हम सर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गहन सोच जो है, गहन सोच यानी मैंने जैसे बताया क्रिटिकल थिंकिंग, तो गहन सोच के ये जो दिखाई दे रहे हैं वो 5 चरण हैं। गहन सोच अचानक से उत्पन्न नहीं होती, इन 5 चरणों से गुजरकर ही समाधान तक पहुंचा जाता है। तो अगर हम इस कहानी को जोड़े, इस कहानी की बात करें तो इन चरणों के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी ने बिना सोचे समझे नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ देखा और ना सोचा ना समझा और उसे मार डाला। उसने परिस्थिति की पहचान नहीं की कि वास्तविक परिस्थिति क्या थी, ना ही उसने जानकारी एकत्रित की और तो और ना ही उसने प्रमाणों का मूल्यांकन किया कि सही में क्या हुआ है, क्या प्रमाण, क्या साक्ष्य, क्या एविडेंस उसको मिल रहे हैं वहां पर, ना तो उसका मूल्यांकन किया। सीधा समाधान पर पहुंच गई, सॉल्यूशन पर वो जाकर पहुंची और उसका परिणाम जो हुआ वो पश्चाताप के अलावा उसे कुछ न मिला। तो अगर इस प्रकार की छोटी छोटी पंचतंत्र की विविध कहानियां हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों से चर्चा करें तो बातों ही बातों में क्या हो सकता है कि हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करा सकते हैं, जो भविष्य में उन्हें बड़े से बड़े निर्णय लेने में सहायक भी सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कि बच्चों के मन में क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, वो सोचने की उनकी क्षमता बढ़ जाए, इस उद्देश्य से मैंने कक्षा 5 में इसी कहानी को बच्चों को सुनाया और बच्चों को प्रश्न पूछा जिसे वे कहानी से मिली सीख के आधार पर अपने रियल लाइफ से जोड़े, अपने जीवन से जोड़े और समस्या का हल निकाले। और मेरा प्रश्न था, अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु कहीं खो जाती है, आप उसे घर में, विद्यालय में, हर जगह खोजते हैं किंतु नहीं मिलती। दूसरे दिन जब आप विद्यालय जाते हैं और वही वस्तु आपको अपने मित्र के बस्ते में दिख जाती है, तो ऐसे समय में आपकी प्रतिक्रिया यानी आपका रिएक्शन क्या होगा? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो क्यों होगी? सकारण लिखिए। और यहाँ मैंने क्यों शब्द पर बल दिया है कि ये ऐसी प्रतिक्रिया आपकी क्यों होगी, शब्द का प्रयोग मैंने किया हुआ है क्योंकि हमें हमेशा किसी भी समाधान तक पहुंचना है या बच्चे जो उत्तर देते हैं उन्हें ऐसे ही स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये मेरा मत है, जब तक उसका कारण ना मिले। क्यों, बार बार उन्हें पूछिए। और एक बार जब मैंने सिद्धार्थ सर का एक सेशन भी अटेंड किया था तो उन्होंने भी कहा था कि बच्चों से बार बार पूछो, ऐसा है तो क्यों, वाई ऐसा पूछो। और तब मुझे लगने लगा कि जो मैं कक्षा में करती हूँ वो सही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्यों पे बल दिया है और यहाँ पर मेरे बच्चों ने बड़े अच्छे उत्तर दिए, अपनी तार्किकता का उपयोग किया, अपनी सोच का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ आरुषि राज लिखती है कि अगर मेरी कोई मनपसंद वस्तु खो जाती और स्कूल में मेरी दोस्त के बैग में वो मुझे मिल जाती तो मैं कहानी की औरत की तरह पूरी बात बिना समझे कुछ नहीं करूंगी। पहले देखूंगी कि वो वस्तु उससे पूछूंगी कि तुम्हारी है, अगर उसकी है तो ठीक है, नहीं तो बोलूंगी कि ये मेरी है तो मुझे दे दो, या फिर वो अगर बोलेगी कि वो तुम्हारी है, मैं तुम्हें पहुंचाने आ रही थी तो ठीक रहेगा। यहाँ पर गर्वित केशरवानी कहते हैं कि अगर मैं देख लेता कि किसी ने मेरी वस्तु ली है तो मैं बहुत क्रोधित होता। जाहिर सी बात है, क्रोधित तो होगा बच्चा कि मेरी वस्तु कल से ढूंढ रहा हूँ, इसके पास मिल रही है ना, तो क्रोधित हो जाऊंगा। और फिर जब पर कब थोड़ी देर में शांत भी हो जाऊंगा, ऐसा भी वो कह रहा है। और पूछूंगा उससे कि तुमने मेरी वो कोई वस्तु जो है किसी वजह से ली तो नहीं है। मैं उस औरत के जैसे नहीं रहूंगा तो पहले सच्चाई जानूंगा। यानी छोटा बच्चा भी वहां सोच रहा है कि वो सच्चाई पहले जान लेगा, ऐसे ही उस पर अग्रेसिव नहीं होगा, ऐसे ही उस पर आरोप नहीं लगाएगा। एक बच्चा बोलता है कि मैं हैरान तो हो जाऊंगा, सही बात है, शौक हो जाएगा बेचारा उसको देख के, मेरी वस्तु इसके बैग में कहाँ से आई, शौक हो जाएगा। फिर
उससे पूछूंगा कि तुम्हारे पास कैसे मिली, क्या ये तुम्हारी वस्तु है या कहीं तुम्हें मिली है। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के उत्तर जो है वो हमारे बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किए। तो धीरे धीरे क्या करते हैं बच्चे, अपनी गहन सोच को अपने जीवन से भी जोड़ते जाते हैं। और ऐसा करने से जो है इनमें आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत अपने तरीके से कल्पना करके परिस्थिति को समझकर भी, यहाँ जो 5 चरण देखे वो सब चीजें बच्चों ने यहाँ की है फॉलो, परिस्थिति को समझा है और समझकर रोचक उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग है वो कक्षा के दौरान ही हम इसे बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण बच्चा जो है ऐसी सोच को आगे और बढ़ाए और बड़े होकर जब उसे बड़े बड़े निर्णय लेने का जब उसके सामने अवसर आए तो वो लड़खड़ाए ना और अपने निर्णय जो है वो आसानी से ले सके। तो हम कहानियों के माध्यम से ये सारी चीजें कक्षा में करा सकते हैं। अब इसी श्रृंखला की आगे की कड़ी के लिए मैं शीतल मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो आपको नैतिक शिक्षा के बारे में बताएंगी। धन्यवाद मनीषा मैम। यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरी ओर से शुभ संध्या। और सर्वप्रथम मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत सारे टैब ओपन होने के कारण मैं स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर पाई शुरुआत में। हम जब भी कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाते हैं, उन्हें कहानी का तात्पर्य पूछते हैं, कहानी से मिली नीति शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। आज सांप और नेवले की कहानी आप सभी को सुनाई गई है। इस कहानी से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, कृपया बताइए। इसके लिए मैं चैट बॉक्स में लिंक पेस्ट कर रही हूँ। आप सभी कृपया बताइए कि सांप और नेवले की जो कहानी हमने सुनाई है, इस कहानी से आपने क्या नैतिक शिक्षा पाई। Yes, think before act, do not judge others, think before action, बिना सोचे निर्णय ना ले, यस लुक, बिना सोचे समझे निर्णय ना ले, धैर्य और बुद्धि का उपयोग, थिंक बिफोर एक्ट। हाँ, तो कितने सारे, और हर किसी का कुछ, सभी की कुछ अलग अलग नीति शिक्षा, यानी सभी ने कहानी से कुछ ना कुछ अलग सीखा। यस, मकरन सर प्लीज आप मेंटीमीटर की स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। एक्चुअली मैं ओनर ना होने के कारण उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके 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 सर, कोई बात नहीं। So may I stop presentation? नहीं सर, इट्स ओके। मैं बता ही देती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ कि यही कि थिंक बिफोर एक्शन, ज़्यादातर तो यही क्रिया प्रतिक्रिया आई है कि थिंक बिफोर एक्शन, बिना सोचे समझे कोई कार्य ना करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। और यह सारी क्षमताएं पंचतंत्र की कहानियों द्वारा हम बच्चों में विकसित कर सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियां सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखकर बनाई गई है और यह बहुत ही अच्छी सीख देती है। पंचतंत्र की कहानियां बहुत जीवंत है। प्रत्येक कथा को पढ़कर यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल कैसे हो। मनोविज्ञान, व्यावहारिकता तथा नैतिक सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियां सरल भाषा में सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से बच्चों के सामने रखती है और साथ ही हर कहानी एक सीख देने की कोशिश करती है। इन कहानियों में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन अधिक किया गया है।
और लेखक ने अपने विचारों को उनके माध्यम से व्यक्त किया है। पशु पक्षियों, लोगों को आधार बनाकर बच्चों को उचित अनुचित आदि का ज्ञान देना सरल होता है। बच्चों को लाइफ वैल्यू सिखाने का यह सरल और सटीक तरीका है। बच्चों को उनकी भाषा में अत्यंत सरलता से नीतिगत बातें समझाने में अति उपयोगी सिद्ध होती है। इन्हीं सभी बातों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी में उल्लेख किया गया है, जो हम पंचतंत्र की कहानियों द्वारा बच्चों में विकसित कर सकते हैं और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, थैंक यू। कक्षा 8वीं में मैंने यही कहानी बच्चों को सुनाई और इन्हें इसी से मिलती नैतिक शिक्षा को पैडलेट पर अपने विचार प्रकट करने को कहा। उनमें से कुछ पढ़कर सुनाती हूँ। जैसे कि मैंने ये कहानी मराठी में सुनाई है क्लास में, क्योंकि मैं मराठी पढ़ाती हूँ। तो मर्यादा शनिवारे ने लिखा है की मी जर त्या जागी राहिली असती तर मी पाहिलं असतं की त्या बाळ कुठे आहे, ते जीवित आहे की त्याला मारून टाकलं, आणि मगच मी विचार केला असता की काय करायचं। याने अगर मैं उस ब्राह्मण महिला की जगह होती तो मैं पहले अंदर जाकर देखती कि सच में मेरा बच्चा जीवित है या मरा, उसके बाद ही मैं कुछ निर्णय लेती। दूसरे बच्चे ने श्रुतीने बताया है की ही गोष्ट ऐकून आम्ही हे शिकलो की काहीही कधीही कोणत्याही गोष्टीला न विचार करता, न पाहता, न ऐकता त्याच्यावर कोणताही निर्णय घेऊ नये। यानी हड़बड़ी में हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, उस चीज को पहले परख लेना चाहिए। यानी हर बच्चे ने कुछ नया, कुछ अलग सीखा और अलग तरीके से प्रकट किया। तो पंचतंत्र की कहानियां हमें ऐसे ही मूल्य बच्चों में विकसित करने में मदद करती है। इसीलिए बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां जरूर सुनाएं, जो उनमें भविष्य के लिए समझ विकसित करने में सहायक बनती है। पंचतंत्र के विभिन्न भागों की कहानियों से बच्चे सीखते हैं कि मित्रों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, परिवार का जीवन में क्या स्थान है, परिश्रम एवं ईमानदारी का क्या महत्व है, तथा संकट पड़ने पर अपनी बुद्धि से किस प्रकार समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। इससे एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। इसीलिए पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को सुनाना अनिवार्य हो जाता है। जरूरी नहीं कि यह कहानियां सुनाने के लिए अलग से हमें पाठ्य पुस्तक लगाना पड़े। हम इन कहानियों को क्यूसीटी पीरियड में या फिर प्रॉक्सी पीरियड में भी सुना सकते हैं और बच्चों में इन सारे मूल्यों का हम विकास कर सकते हैं। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी को बढ़ाने के लिए मैं मकरंद सर को आमंत्रित करती हूँ। फिर से सभी को मेरा प्रणाम। देखिए कि बात आती है नवरस की। कक्षा में पाठ हो, चाहे कविता हो, चाहे कथा हो, जब भी हम पढ़ाते हैं तो वहाँ रस का परिपोष होना बहुत जरूरी है। यदि मैं झांसी की रानी की कविता पढ़ा रहा हूँ और उसमें यदि मेरी आवाज यदि ऊंची नहीं जाती है तो झांसी की रानी के वीरश्री का वर्णन करने के लिए मैं असमर्थ हूँ, यह साबित होता है। इसीलिए पाठ या कविता पढ़ाते वक्त रस का परिपोष करना यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो चलो इसी कथा की ओर चलते हैं कि वास्तव में संस्कृत बताए गए, संस्कृत में नव रस यहाँ पर दिए गए हैं। श्रृंगार वीर करुण अद्भुत हास्य भयानकाः बिभत्स रौद्रौ शांतश्च काव्ये नवरसः स्मृतः। आई श्रोतारः, तो यहाँ देखिए कि श्रृंगार रस जो है वह कहाँ दिखता है, जब माता का पुत्र के प्रति प्रेम है और पुत्र के प्रति प्रेम होने के कारण वह उसकी सुरक्षा के लिए वहां अपने पति को बोलती है कि आप यहाँ रुकिए, बच्चा वहां पर झूले में सो रहा है। और उसका उसके पुत्र के प्रति प्रेम वहां दिखाई देता है कि उसकी सुरक्षा का परिपूर्णता से, लालन पालन से वह कर्तव्य निभा रही है। वीररस की अनुभूति जब आती है, जब नेवले का सांप के साथ भयंकर युद्ध होता है और नेवला सांप के ऊपर इतनी आक्रामकता से टूट पड़ता है और सांप फुसकारे देते हुए अपने मुंह से हवा बाहर निकालते हुए नेवले के ऊपर टूट पड़ता है, दोनों में भयंकर युद्ध होता है, वह वीरश्री का वर्णन होता है।
ये वीरश्री का वर्णन बताते हुए वीर रस का परिपोष होता है। धैर्य, स्थैर्य, वीर्य, गर्व, उत्साह, पराक्रम, और सभी बच्चे एकदम अपने कान खोलकर सुनने लग जाते हैं। वीर रस की अनुभूति वही हमें प्राप्त होती है। भयानक रस का परिपोष इस कथा में नेवले का आरक्त मुख देखकर माँ के मन में घबराहट पैदा होती है कि कहीं क्या हो गया है। एकदम मैं डर गई हूँ, किसी ने किसको क्या किया है, किसी आग या नेवले ने मेरे बच्चे को तो नहीं खाया, क्या हो गया है, इसका मुंह एकदम लाल लाल है। तो ऐसा भयानक रस वहां दिखता है। और रौद्र रस की परिपोषता वहां दिखती है कि नेवले ने मेरे पुत्र की हत्या की है, ऐसा मानकर जो रौद्रावतार धारण करते हुए महिला क्रोध पूर्वक नेवले की हत्या करती है, तो वहां रौद्र रस का परिपोष होता है। कुछ इसी प्रकार एक ही कथा से अनेक रसों का परिपोष हम यहाँ कर सकते हैं। ये तो केवल एक कथा के बारे में ही आज यहाँ प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। ऐसी तो 84-85 कथाएं पंचतंत्र में बताई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा लागू की गई आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि पंचतंत्र की जो कथाएं है ना, ये पंचतंत्र की कथाएं अपने भारतवर्ष में ही विकसित हुई है। उसका ही पुनरुत्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा किया गया है। नालंदा, तक्षशिला, काशी, द्रविड़, कश्मीर आदि विद्यापीठों में पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रंथ धरोहर सुरक्षित थे, किंतु समय ने उनका काल कवलीभूत ऐसा घास ले लिया है। किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा आज यह सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ, अतः हम प्रॉक्सी पीरियड में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियां सुनाकर गतिविधियां करवा सकते हैं। उससे उनके बुद्धि का विकास होगा, सर्वांगीण विकास में सहायता होगी, तथा कक्षा में विषय से संबंधित कहानियां सुनाकर हम अपने कालांश की शुरुआत भी कर सकते हैं। उससे छात्रों की लक्ष्य वेधन की क्रिया आसानी से हो सकती है। माननीय सिद्धार्थ सर, गौतम सर, श्रीमती अनुपमा महोदया, मुकेश सर, श्रीमती पुष्पी महोदया तथा राजश्री महोदया, उपस्थित सभी गणमान्यों के हम सब ऋणी हैं। उनकी असीम अनुकंपा से आज हमें सीसी फ्राइडे में भाग लेने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। उपस्थित सभी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी की सायं वेला मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय डीपीएस। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया पंचतंत्र की कहानियों के बारे में आपने बताया। एंड मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक सवाल है जितने आज लोग प्रेजेंट कर रहे थे उनसे, जब आप एक चित्र दिखाते हैं, जैसा चित्र दीप्ति मैडम ने दिखाया, तो काफी बार उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे एक साथ में हैंड रेज हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे अचानक से अनम्यूट करके बोलने लगते हैं। इस तरीके का अगर क्लासरूम का माहौल बने तो उससे कैसे डील करना चाहिए हमें? ये तो उत्साहवर्धक बात हुई सर। हम क्लासरूम को जिंदा रखना चाहते हैं। केवल कथा की परिपूर्ति और कथा में सभी ने रुचि ली है, ये इसी बात से प्रतीत होता है कि जब हर बच्चा बोले कि मैं इसका जवाब दे पाऊं, मैं इस जवाब देने की कोशिश करूं, ये तो प्रफुल्लित वातावरण के धनी हो जाते हैं शिक्षक लोग कि हर बच्चा ये सवाल के जवाब की देने की कोशिश कर रहा है। तो ये सफलता का एकमेव कारण है। और इसे ऐसा डील किया जा सकता है कि बच्चों को एक नाट्य प्रस्तुति दी जा सकती है कि आप इसके ऊपर नाट्य प्रस्तुति करिए, या फिर अपने विचारों का लेखन करते हुए आप इसके ऊपर सुंदर एक लघु नाटिका लिखिए कि जिसे हम आने वाले अपने एनुअल फंक्शन में प्रेजेंट कर सके। और बच्चों ने लिखी हुई लघु नाटिका यदि हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो इसके जैसा सुनहरा अवसर शिक्षक और विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं हो मेरा ये जो सवाल है, कि अगर आपने ऐसा चित्र दिखाया और बहुत सारे लोगों ने अपना हैंड रेस किया और अनम्यूट करके बोलने लगे, तो उस क्लास को आप कंट्रोल करना चाहेंगे या नहीं कंट्रोल करना चाहेंगे, और आप बच्चों पे कंट्रोल छोड़ देंगे? सर कंट्रोल तो ये करना बाकी जरूर लोगों से चाहेंगे। भी सवाल है। पुष्पी मैम, अनुपमा मैम, मुकेश सर, आप भी इसमें शेयर कर सकते हैं कुछ अगर शेयर करना चाहें तो।
classroom management is very essential for fruitful transaction of lessons. तो क्लास को अनुशासन में रखना तो बहुत जरूरी है. तो जो हैंड रेज फीचर है उसका ऑप्टिमल यूज करना चाहिए क्लास में. मानती हूँ कि एक्साइटमेंट है बच्चों में और सब उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन क्लास को वो पैंडेमोनियम वाला सिचुएशन तो हम नहीं अलाउ कर सकते. अदरवाइज तो कोई भी एक बच्चा जो उत्तर दे रहा है उसका उत्तर कोई सुनेगा ही नहीं, और जो हम सुनना चाहते हैं बच्चों से वो किसी का भी आंसर किसी को भी रीचेबल नहीं होगा. सो अनुशासन तो मेंटेन करना पड़ेगा फॉर हेल्दी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. इट्स इम्पोर्टेंट. कल्पना सिंह मैम बोलती हैं कि अदरवाइज हम जैम बोर्ड या पैडलेट जैसा एक टूल यूज कर सकते हैं जिससे कि फेमस न हो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक दूसरा सवाल है मेरा, ये नीलम मैडम से सवाल है. नीलम मैडम ने हम सबसे पूछा कि कौन से 2 जानवर आप चूज करेंगे. मेरा उनसे सवाल है कि आपने ये क्यों पूछा हमसे? सर, क्रिएटिविटी की बात हुई, रचना की बात हुई, इसलिए प्रश्न मैंने पूछा है कि अगर हम विष्णु शर्मा जी की जगह होते तो हम क्यों मतलब 2 जानवर लेते, वो कौन से होते. तो जैसे बहुत सारे हमारे शिक्षकों ने जवाब दिया कि टॉम एंड जेरी का शो हम सबको बड़ा पसंद आता था, आप देख रहे हैं, और उसमें लड़ाइयाँ हुई है, शेर और चूहे की कहानी की बात की गई. तो रचनात्मकता इसी बात को लेकर सर बच्चे कम से कम 5-6 कहानियां याद कर लेते, उन्हें 5-6 कहानियां और याद आ जाती, उन्हें 10-12 कैरेक्टर्स और याद आ जाते कि इनके बीच में शत्रुता है, इनके बीच लड़ाई होती है, तो हम इनको लेकर भी स्टोरी लिख सकते हैं. ऐसा इस उद्देश्य से मैंने ये प्रश्न पूछा कि उसमें कहीं ना कहीं रचनात्मकता जरूर हो. चलिए, धन्यवाद. ओके, सो हम काफी बार से इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं. किसी और का कोई सवाल है? कुछ Q&A में कोई सवाल नहीं आए तो मैंने बोला मैं अपने ही सवाल पूछता हूँ. और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज Q&A में डालिए, आई विल टेक इट अप. मैं 10 मिनट और लूंगा आपसे. एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ. बहुत समय से मैं सोच रहा हूँ, बट आज भी सबने आधा घंटा मांगा था, बट इन लोगों ने पूरा 1 घंटा ले लिया. सो मैं 5 मिनट का एक वीडियो दिखाऊंगा और 5 मिनट की चर्चा करूंगा. हाँ पुष्पी मैम, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप प्लीज बोलिए. हाँ जी. आज क्योंकि सांप और नेवले की बात हो रही थी तो मैंने सोचा ये अवसर बहुत अच्छा है आप सबके साथ में एक चीज शेयर करने के लिए. एक पत्नी सुबह सुबह उठी, उसने गर्म दूध पिया और प्याले में डाल के अपने पति को ले जा करके बोली, जाने मन ये गरम गरम दूध पी लो. पति आश्चर्यचकित रह गया, बोले आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है कि तुम मुझे दूध पिला रही हो. बोले आज नागपंचमी है. सांप को दूध पिलाना ये नागपंचमी का ध्येय. वेरी फनी मोमेंट मैम. चलिए बढ़िया. ओके, सो मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ. ये वीडियो 2 लोगों के बीच में है. मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम लोग सब आज अपने क्लासरूम्स में बच्चों के साथ डेवलपमेंटल डिस्कशंस कर रहे हैं. इस वीडियो को देखते समय आप वीडियो के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ प्रॉम्प्ट्स आएंगे. मैं चाहता हूं कि आप उनके तरफ जरूर ध्यान दीजिए और वो प्रॉम्प्ट्स क्या बोल रहे हैं उसको कहीं नोट करना चाहें तो जरूर नोट करिए. ये आप सोचिएगा कि ये वीडियो 2 बड़े लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, बट मैं ये चाहता हूं आप ऐसा सोचें कि जो मैनेजर है वो आप हैं और जो दूसरा पर्सन है वो बच्चा है. और अगर सेम कॉन्वर्सेशन आप बच्चे के साथ करेंगे तो कैसा रहेगा. और मैं कुछ सवाल इस वीडियो के बाद आप लोगों से पूछना चाहूंगा. Hey Tristan, how are you? Hi Simone, I'm doing well. Thanks for setting up this regular time for us to connect. I've enjoyed meeting with you more regularly and getting to know you a little bit better. How have these conversations been going for you? I think they've been going really well. I'm starting. पहला प्रॉम्प्ट अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो उसमें था कि एक एजेंडा और टाइम
को आप स्केड्यूल में डालिए। I'm starting to get a feel for how my work fits into the larger picture of the team, and that's been really energizing. It's energizing for me too. So for today's conversation, as I mentioned in my email, I wanted to hear about some of the learning and growth priorities that you wanted to talk about so that I can be supportive. Absolutely. I'm excited to share some of the things I've been thinking about and the ideas that I've been working on. That's wonderful. Thank you for thinking ahead and coming prepared. I have to say, I'm really enjoying being part of the team, and I really love the work that I'm doing. I can really see myself continuing to grow here. I'm so glad to hear that, and I'm really happy that you're part of the team. So we will have these development conversations continuously ongoing, and not just when we're feeling dissatisfied. So let me start by asking, what have you been working on the last few months that you're really proud of? Well, I've had a lot of fun on the finance project. Tell me a little more about that. It was really interesting to work with people from other parts of the university. I learned a lot about the university that I never knew before. It was really eye-opening. And the quality of the work that you did was also really high. What are some of the strengths that you brought to make it so successful? Well, I think for one, I'm a pretty good listener. And two, I asked a lot of good questions without being too opinionated. It also really helped that I know my way around SharePoint, and that ended up being the collaboration tool that we used. It sounds like you use both people skills and technical skills, both of which are incredibly important for getting cross-functional projects done. And I agree with you that those are your strengths. What other kinds of opportunities do you see that might allow for you to keep stretching and practicing those skills? Honestly, I'd like to lead a project at some point. Ideally, that would be a great next step opportunity for you, and I'm going to keep my eyes open. I know we've talked about how important it is to expand your professional network. What have you been doing on that front lately? Well, I belong to the Financial Technology Group, and I'm also a member of my local alumni chapter. But honestly, I really find it hard to make time for those extracurriculars. Maybe it's important not to consider them extracurriculars, but actually part of your work. The connections that you make give you great perspective and actually reflect well on the team. I think so too. Okay, so let's make it a priority for you to attend at least one networking event this quarter. And then by our next meeting, let's identify one project that you can really lead and pursue that opportunity. I really like the sound of that. Great. So do you want to capture this conversation in the performance conversations form? Sure, I think it's really helpful to keep track of these notes. I do too. Thanks a lot. Thanks, and thank you for keeping the time. For both managers and staff members, these kinds of conversations get easier with practice. Here are a few tips for making performance conversations work for you. Be sure to schedule a little time for preparation and follow-through, as well as for the conversation itself. Start collecting and using good open-ended questions that help you exchange ideas and perspectives without putting anyone on the defensive. Practice active listening with the aim of really understanding each other. Remember that your working relationship with each other contributes significantly to how satisfied and productive you are at work. Okay, so my purpose of showing this video to all of you, हम सब development discussions बच्चों के साथ कर रहे हैं. My purpose of showing this video to all of you was हमारा जो discussion है, development discussion है, वो इस line में होना चाहिए. This is the kind of tone जिसमें हमारा development discussion होना चाहिए, जिसमें कि हम जो बच्चा है उसको हम बच्चे की तरह न ट्रीट करें. हम उसको एक, मैंने आपको 2 अडल्ट्स का वीडियो क्यों दिखाया? मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि हमें बच्चे को एक अडल्ट की तरह ट्रीट करना है. चाहे वो क्लास 3 का बच्चा हो, 4 का बच्चा हो, आपको उसको बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करना है. आपको उसको एक इंडिविजुअल, एक थिंकिंग इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है ना. अपने कंपैरिजन वाले व्यक्ति की तरह ट्रीट करना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक टाइम स्केड्यूल करना है जिसमें कि वो भी उसको पता हो एंड ही शुड बी ओके विद दैट टाइम. आपको एक एजेंडा सेट करना है कि क्या एजेंडा होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे मेरे मीटिंग के, वो उसको पता होना चाहिए. आपकी पूरी क्लास को पता होना चाहिए कि जब डेवलपमेंट डिस्कशन हो रहा है तो मैम किस चीज के बारे में बात करने वाली है. आपने अगर देखा होगा तो जो मैनेजर है उसने पहले उसकी स्ट्रेंथ्स बताई और उसके बारे में डिस्कशन किया. मैनेजर ने कहीं पर भी बच्चे की वीकनेस, सामने वाली की वीकनेस कभी कहीं भी नहीं बताई.
उसके सवाल से सामने वाले ने अपनी वीकनेस खुद बताई। उसने ऐसा सवाल पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग टू डेवलप कोलैबोरेशन। उसने जो सवाल पूछा तब उसने बोला कि आई एम नॉट टेकिंग पार्ट इन दोज इवेंट्स। तो आपके पास वो सवालों का रेपोर्टियर मतलब एक कलेक्शन होना चाहिए, ताकि आप वैसे सवाल बच्चों से पूछ पाए अपने डीडीज में, ताकि बच्चा अपने वीकनेस को खुद आइडेंटिफाई कर पाए। यू शुडंट बी आइडेंटिफाइंग दोज, यू शुडंट बी टेलिंग कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो डीडी नहीं होगा। दैट विल बी अ फॉर्म ऑफ पीटीएम जो हम पहले करते थे जब हम बच्चे के ऊपर ब्लेम करते थे। तो हमें कहीं भी डीडी में ब्लेम नहीं करना है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। हमें उनसे ऐसे सवाल पूछने हैं कि वो अपनी खामियों को खुद से आपके सामने रखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस डिस्कशन में थी कि हमें आगे के फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना है और पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करनी है। चर्चा जरूर करनी है पास्ट पे, बट ज्यादा कंसंट्रेशन फ्यूचर में हम कैसे काम करेंगे उसके ऊपर काम करना है। उसने सामने अपने टीममेट से ये भी पूछा कि आगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज में आप पार्ट लेना चाहते हो। सो वो एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन है जो कि आप भी यूज कर सकते हैं कि आगे आप अपने क्लासरूम में किस टाइप के चीजों को लीड करना चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि मैं आपके साथ क्लासरूम में किस टाइप की चीजें करूं, किस टाइप से मैं अपने लेसन आप तक पहुंचा पाऊंगी, ठीक से आप बताइए, है ना। तो वो बताएगा कि मैम पीबीएल में मुझे मजा आता है, या एसएलसी में मजा आता है, या आप ब्रेकआउट रूम में भेजते हो तो मजा आता है, या आप जब मुझसे 1-to-1 बात करते हो तो मजा आता है, या आप कहूट कराते हो तो मजा आता है। एंड आपके पास कितना ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको आप अपने आगे क्लासरूम में यूज कर सकते हो, है ना। सो आई होप कि ये वीडियो देख करके आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम अपने डेवलपमेंट डिस्कशंस को लीड कर सकते हैं। एक छोटा सा पोल, पंकज जी, इफ यू कैन लॉन्च द सेकंड पोल फर्स्ट। जो सेकंड पोल है उसको अगर आप पहले लॉन्च करें। यस यस। प्लीज आंसर दिस पोल। आप अपने बेस्ट ऑफ जो आपके अंडरस्टैंडिंग है उससे इस पोल को आंसर करिए। एक छोटा सा सवाल है। सर कर दिया है, आ गया? हाँ आ गया। ओके। If you have answered, just put a done in the chat box so that we know. Okay, we will wait for another till the count of 5 and then we will close the poll. Pankaj ji, once this poll is closed, please launch the other poll. Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, you can launch the other poll now, Pankaj ji. And you can close this one. So we've just taken this poll to understand ki how are we doing with development discussions, and it will give me a good idea of where we are at different schools with respect to development discussions. The second poll is also launched, and that is with respect to the classroom management and Rob Plevin's classroom management tools. Pankaj ji, once another 1 minute, and you can close the second poll as well, and also show the results of the second poll. Okay, sir. Another 1 minute. Hold for a minute. Right, sir. Anybody would like to unmute and share anything about development discussions? आप जब कर रहे हैं तो कोई difficulties, any breakthroughs that you came across while doing development discussions? Ratna ma'am, your hand is raised. You want to share something?
Okay. Anybody else would like to share anything about development discussions, any difficulties, any breakthroughs that you've found while working with them? Yes, Sunanda ma'am, go ahead. Jai Hind, sir. What I find, like during, though I was, because of my ill health, I couldn't conduct few academic management in September. But when I conducted last month, what I found, sir, I was not able to know many kids. But when I started talking one-to-one, I found like you were talking about the strengths. I was surprised. Some children, they were so quiet in the class, and when they came forward, I was surprised that they were so like talented in other fields. So this was like an eye-opener for me. So during this DT, they come closer, they are connected, and they share what दिल की बात कहते हैं. So मुझे लगा this is the best way, like for a teacher. बहुत उससे फायदा होता है. Yeah, indeed. I think those one-to-one connections definitely work. Pankaj ji, can you launch the results of the second poll? Yes, sir. Anybody else would like to share anything about DDs? Result visible है sir? नहीं. Anupama ma'am, sorry I did not come to you after the first presentation. If you want to add anything, please feel free. No, sir, no problem. It's just that I wanted to share this, that when Vishnu Sharma, who wrote Panchatantra, was given the task of educating these three princes, he realized that the conventional and traditional methods didn't work with them. And that is the reason he wrote these stories. So the gist of this presentation, I think, is this, that when conventional methods don't work, please go to Panchatantra. Thank you so much. Wonderful. So sorry I did not come to you. So अगर आप पोल देखेंगे, so ये तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने ये पोल भेजा है इसलिए किसी ने नो में आंसर ही नहीं दिया है. बट चलिए मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं किसी का नाम तो देख नहीं सकता, तो मैं ये मानता हूँ कि सब सही भेज रहे होंगे और मुझे खुश करने के लिए किसी ने नहीं भेजा होगा, क्योंकि सबको पता है पोल में नाम नहीं दिखते. तो आई एम सो हैप्पी टू सी कि अब लगभग 94 लोगों ने आंसर किया है और हर एक ने बोला है, 88 ने बोला है कि हाँ मैंने रॉब प्लेविन के ट्रेनिंग्स को देख करके मेरे क्लासरूम में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर हुआ है. सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि आई कैन नॉट से येट, राइट. एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बोला है कि कोई डिफरेंस नहीं हुआ है. सो ये बहुत बड़ी चीज है कि तीनों स्कूल के सभी सभी टीचर्स ये हमें बता रहे हैं कि रॉब प्लेविन की जो ट्रेनिंग्स है क्लासरूम मैनेजमेंट की, उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके क्लासरूम में हुआ है. तो जो भी व्यक्ति अभी तक उस सारी ट्रेनिंग्स को अगर आपने पूरा नहीं किया है, प्लीज अश्विनी से कांटेक्ट करिए और उन ट्रेनिंग्स का लिंक मंगाइए एंड वो सारी ट्रेनिंग्स को गो थ्रू करें, अच्छे से डिटेल में गो थ्रू करें. एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन टीचर्स के लिए नहीं है, सिर्फ आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, ये सब सब्जेक्ट्स भी उतने ही मेन हैं जितना इंग्लिश, मैथ्स, साइंस मेन है. सो उन सब टीचर्स के लिए भी रॉब प्लेविन की जो ट्रेनिंग्स है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्लासरूम मैनेजमेंट आपको भी उतना ही यूजफुल है जितना इंग्लिश टीचर के लिए यूजफुल है और जितना मैथ्स टीचर के लिए यूजफुल है. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन to today's presenters, Sheetal ma'am, Neelam ma'am, Manisha ma'am, Deepti ma'am and Makran sir. Great presentation, lots of takeaways for everybody. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Any last words, Pushpi ma'am and Anupama ma'am, please. Kudos team Nagpur, really very well presented. Simple presentation
lot of in-depth sharing has happened, how all the skills could be imbibed and transacted to the children. Beautifully presented. Ma'am, all credit goes to our principal ma'am and Rajeshri ma'am. These days I am using the tagline in our meetings, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें. Learn to credit yourselves also. We are mentors, all of us, we principals, but principal is successful because there is a successful team behind the principal. So good job done, all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Anupama ma'am, any parting words from you? No, sir, I think I spoke what I had to. Thank you so much. Thank you, Pushpi ma'am. Well said. One big learning for me was कि जो मकरंद जी ने लास्ट में बताया कि भाई आप पंचतंत्र की कहानियों को जो आपके प्रॉक्सी पीरियड्स हैं और वहां पर जरूर कर सकते हैं. आई थिंक दैट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल वे कि अगर हम एक कलेक्शन बना लें और यू नो वी कैन गो एंड यूज दैट इन द प्रॉक्सी पीरियड. आई थिंक दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ यूजिंग देम. चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी. हैव अ गुड इवनिंग. थैंक यू. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.